Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. KK Mobiles, the biggest retail mobile showroom in Mehboob Nagar, beside Haji Ghaffar Petrol Pump, MBC Complex, Mehboob Nagar. عالم اسلام کے عالم ربانی محبوب العلماء فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ، جو ہندوستان کے سب سے عظیم پلیٹ فارم منسوب الی الاسلام، مسلمانوں کا سب سے متحدہ ادارہ آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ کے صدر باوقار بھی ہیں. ہم نے سنا تھا کہ 85 کی تحریک میں حضرت اپنے بڑوں کے ساتھ ساتھ تھے اور اس تحریک نے سپریم کورٹ سے لے کر پارلیمنٹ تک ہلا رکھا تھا. ہم نے 85 کی تحریک کو تو نہیں دیکھا، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ 2025 کے اس عظیم تحریک میں ہم سب آپ کے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تحریک علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا، صحیح کہا آپ نے. مدھیہ پردیش کے منتری جی کو بھی پتہ چل جائے کہ اسے ہندوستان کی رہنے والی صوفیہ قریشی بھی ہے. سبحان اللہ. اصل میں جب آدمی کو جانڈس ہو جاتی ہے تو دودھ بھی پیلا پیلا نظر آتا ہے، اور بلی کو خواب میں بھی چھچڑے ہی نظر آتے ہیں. 10-11 سالوں میں ان کی ایسی مانسکتا بنائی گئی ہے کہ اپنے گھر کے بال بچوں سے بھی بات کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ پہلے ہماری جے جے کار بولو تبھی ہم اپنی اولاد تسلیم کریں گے. یہ بیمار ذہنیت، اصل میں اس مینٹالٹی کے جتنے لوگ ہیں ان کی حیثیت پیاز کی ہے. پیاز سمجھتے ہیں آپ، جانتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہوں گے. آپ لوگ پیاز کا پریچے ہے آپ لوگوں سے؟ ذرا پیاز کو سامنے رکھیے، اب اس کے چھلکے نکالنے شروع کیجئے. چلیں نکالیں، نکالتے چلیں. چھلکا نکلا، اس کے بعد کیا نکلے گا؟ چھلکا. اس کے بعد، اس کے بعد، اس کے بعد خیر نصیب جو آخری نکلے گا وہی چھلکا ہی نکلے گا. اس پوری مانسکتا کا حال یہ ہے کہ اس ملک کی سیاست کے چال بازوں نے، ایوان سیاست کے مکاروں نے اچھے اچھے کام کرنے والوں کو بھی دھوکے میں ڈال کر تباہ کر رکھا ہے. پیچھے والوں کو ابھی تک آواز نہیں پہنچی. آواز دو، آواز دو. علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. آپ کو پتا ہے کہ وہ بلبلیں آج کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بلبلیں کہہ رہی ہیں توپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کرنے کی، گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی ہے میرے سیاد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج اگر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ زندہ ہوتے تو شاید بھارت کی محبت میں لکھے گئے نظم کے جرم میں ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ بھارتی اتہاس میں کسی لوکتانتر پولیٹیکل پارٹی کے سب سے یووا ادھیکش، نوجوان صدر کی حیثیت سے 1923 میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر قطب مینار پر اللہ کا فرشتہ اتر آئے اور قطب مینار پر اللہ کا فرشتہ یہ کہے کہ آزاد تم بھارت میں دیش میں ہندو اور مسلمان بھائیوں کی محبت، ایکتا اور اکھنڈتا کی بات کرنا چھوڑ دو، میں تمہیں آزادی دے دوں گا. مولانا آزاد نے فرمایا غلامی قبول ہے مگر محبت کا چھوڑنا قبول نہیں ہے. ایک جماعت کی نمائندگی کرتا ہے، بلکہ آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے
मैं अपने भारत के करोड़ों शांतिपूर्ण हिंदू भाइयों से ये बात करता चलूं कि हम आपके बगैर नहीं है, आप हमारे बगैर नहीं है। कुछ लोगों ने 47 में देश का बंटवारा किया था, मगर अब हम जिंदा हैं, देश में दिलों का बंटवारा होने नहीं देंगे। आप दिलों का बंटवारा करना चाहते हैं, ऐ हमारे देश के प्रिय हिंदू भाइयों, आपके शांति को सलाम है, आपके शांति को आदाब है, आपके पीसफुल माइंडेड और थिंकिंग को सैल्यूट है। आपने इस मुल्क में जिस तरह से कम्युनल हार्मनी को मेंटेन किया है, मुसलमान कल भी आपके साथ खड़ा था, मुसलमान आज भी आपके साथ खड़ा है। लेकिन याद रखिएगा, हम जगह या सोए रहें, लेकिन अपने वक्फ के जमीनों को ब्रोकरों के हाथों में लूटने की इजाजत नहीं देंगे। महाराष्ट्र के कल बम्बे में धारावाहिक एक बहुत बड़ी झोपड़पट्टी है, लोग कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी सनम है वो, उसे बेच दिया गया अडानी जी के हाथों में, उसे प्रसाद के तौर पर दे दिया गया। दिल नहीं भरा। इस देश के अंबानी साहब ने आगा खानी भाइयों के वक्फ की जमीनों पर एक मकान बना और आलीशान महल बना दिया, उस पर भी आपका दिल नहीं भरा। लेकिन अब आपकी निगाहें चल रही हैं कि मुसलमानों के 6 लाख एकड़ वक्फ की जमीनों को लूटने का कानून बना रहे हैं आप। लेकिन हाँ, ये सच है कि हमारे पास 6 लाख एकड़ जमीन कमोबेश होने के बावजूद हमारी कौम के लोग झुग्गी झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, हमारी कौम के लोग फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं। ये जितना हुकूमत के लिए शर्म की बात है, उतना ही मुसलमानों के पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए भी शर्म की बात है। हमें इस बात को कबूल करते रहना चाहिए और ये बात अर्ज कर दूं, जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब सातों जमीनों में, सातों आसमानों में अगर 1 इंच वक्त की कहीं जमीन है तो जीते जी उस जमीन को इंशाअल्लाह हम लूटने नहीं देंगे। आप सब साथ में इंशाअल्लाह। ये तहरीक चलेगी और देर तक चलेगी, ये कोई मामूली दरवाजे से रोकने वाली नहीं है। हुकूमत अपनी जिद में है, लेकिन मैं हुकूमत से अपील करूंगा और विश्वास रखता हूं कि व्यवस्था लोकतंत्र से चलाइए, शक्ति तंत्र से हुकूमत नहीं चला करती है। फिरौन ने कहा था मूसा पैदा नहीं होगा, खुदा ने कहा कि वो पैदा होकर रहेगा। अगर आप वक्त के फिरौन बनोगे तो खुदा किसी मूसा को भेज देगा। और याद रखना, जब मूसा और मूसा की कौम चलती है तो अल्लाह पानी दिखाकर रास्ते देता है, और जब फिरौन चलता है तो खुदा रास्ता दिखाकर पानी में डुबो दिया करता है। अगर आप जिद में हो, अगर आप अहंकार में हो, अगर आप ताकत के नशे में हो, तो मैं भी आपको साफ कह देना चाहता हूं, हमने हुकूमत के सूरज डूबते देखे हैं, हमने इस जमीन की हुकूमतों को बदलते देखा है। लेकिन आपको बता दूं, जमीन की हुकूमतें बदला करती हैं, कायनात का खुदा नहीं बदला करता। इज्जत माब अली जनाब खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, दीगर सियासी कायदीन, उलमाए मशाइखीन, दोस्तों, नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं बस यही कहूँगा कि आज हिंदुस्तान के अंदर मनसूबाबंद तरीके से जो हमारे को पसपा करने की, कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। वक्फ कोई आज का कानून नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर बादशाहत थी, वक्फ था, राजा रजवाड़े थे, वक्फ था, ब्रिटिश हुकूमत थी, वक्फ था, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, वक्फ था। आज 65 साल के हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये बीजेपी सरकार जब से हुकूमत में आई है, इनका मकसद है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को पसपा किया जाए, इनको दबाया जाए। हिंदुस्तान के अंदर पहली मस्जिद 629 के अंदर बनी, उस जमाने से वक्फ है। आज जो मंसूबा खाली कानून बनाने का नहीं है, मंसूबा यह है कि किस तरीके से यह वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए, वक्फ के जायदादों को खींचा जाए। इसके बाद एक सिविल कोड आएगा, पहले बाबरी मस्जिद आई, फिर अब वक्फ बोर्ड आ रहा, फिर एक सिविल कोड आएगा, बहुत सारी चीजें आते जाएंगे। तो बहरहाल
मकसद ये है कि इनको रोकना ज़रूरी है, चाहे वो अमली मैदान में हो, एहतजाज के जरिए हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानूनी मैदान में भी लड़ाई लड़ रहा है, ज़मीनी मैदान पर भी एहतजाज कर रहा है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, स्टेज पर जो है कोई भी कल को बाकी नहीं रहेगा, आप नहीं रहेंगे, लेकिन ये हमारी जायदादें जो हमारे आबा अजदाद ने औकाफ के नाम के ऊपर हमारे मसाजिद के लिए, हमारे मदरसों के लिए है, उसको हमारी आने वाली नस्लों के लिए उसका तहफ़्फ़ुज़ कर जाना हमारी तो जिम्मेदारी है। तो ये बहुत अहम चीज़ है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। जब भी इस सिलसिले में जो भी काल होगा, इंशाअल्लाह आप और हम सब मिलकर जो पर्सनल लॉ बोर्ड कहेगा उसके ऊपर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी मुझे मालूम हुआ कि वक्फ के 220 एकड़ जमीन को गवर्नमेंट एक्वायर करना चाह रही, आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के वास्ते। ये 220 एकड़ आज अगर खरीदने जाएंगे तो 440 करोड़ रुपए की है, मगर आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन सिर्फ 20 करोड़ इसको देकर एक्वायर करना चाह रहा है। मैंने किस किस्म की साजिश हो रही है देखिए हजरत। मैं आपको बताता हूं और एक प्रॉपर्टी जो अंजुमन इस्लामिया मंगलगिरी की है, 350 करोड़ की जायदाद है, मगर उसको सिर्फ 35 करोड़ में जो है गवर्नमेंट खरीद के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को देना चाह रही। तो मैं आपसे इस डायस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गली से लेकर दिल्ली तक आप जो तहरीक को चला रहे हैं उसमें हम लोग सब साथ हैं, मगर गली से लेकर दिल्ली तक जो है इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो वकीला होना है, हम लोगों को जो वकला होना है, जो एडवोकेट्स होना है, उसमें आपकी मदद की भी जरूरत है। बस इन बातों को बताते हुए एक शेर अर्ज करते हुए और बिलखुसूस मौलाना नईम कौसर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेना चाहता हूं। मैं ये शेर आपके हवाले करना चाहता हूं। वक्त बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, वक्त बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र और ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। यारो तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोशिशें शर्त है, दुआओं का भी साथ रहे, वरना ख्वाबों के मकामात बदल सकते हैं। तुम जो अपने हकीकत को समझ लो दिल से, तुम जो अपनी हकीकत को समझ लो दिल से, फिर समझ लो हर तरफ हालात बदल सकते हैं, सोए नसीबों के अफवाह बदल सकते हैं। यारो तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद।